12 साल की थी, गोवा में मेरे माँ बाप यहाँ पे लेके आए थे। मेरा बाप लेबर का काम करता था और वो रोज़ पीता था और वो अपना पैसा पूरा खर्चा करता था। माँ अकेली रैक पिकिंग करके हम लोग को मतलब घर चलाती थी। और बाजू में मतलब बहुत सारा ऐसा लड़की लोग मेरे उम्र के, जैसे 12 साल की 13 साल की लड़की लोग वहाँ पे रहते थे। तो उनको मुत बांध के मतलब मुत क्या है, मतलब देवदासी ही बनाते हैं, भगवान के नाम पे उनको डेडिकेट करते हैं। तो फिर उनको धंधे में डालते थे, रहता बाना में, वहाँ पे धंधे में डालते थे। One of the issues while working on the issue of commercial sexual exploitation we have dealt with is Devadasi practice. Devadasi means Devaki Dasi, which means is the slaves of God. This is a practice which is usually followed by the people in North Karnataka, especially the people belonging to scheduled caste. तो वैसे ही एक औरत आई और मैं माँ से बात की, तो उसने क्या किया, तेरे बेटे को भी मुझ बांध और धंधे में डाल करके इस तरह से माँ से बात की है। फिर उसके बाद में मेरे को मुझ बांधा, 2-3 महीना मैं घर पे ही थी। फिर उसके बाद में 2-3 महीने के बाद में मेरे को रेड लाइट एरिया में लेके गए, फिर वहाँ पे मेरे को जबरदस्ती किया। So when you talk about victims, like I've said, is that so like focusing on victims who have been trafficked, okay, and sold into commercial sexual exploitation. When I say they have been trafficked, mainly they have been deceived by their boyfriends, their peers, okay, who have promised them a good job in Goa, okay, and also those victims who have been deceived by their husbands. So what we have seen is those victims are initially sold off in other parts of India, and then secondary they are brought to Goa. उस टाइम पे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं। 2-3 बार मैं भाग भाग के भी आया वहाँ से, जो रूम में रखते थे मेरे को, फिर मैं भाग के आ जाती थी। फिर वो लोग आते थे, फिर माँ को सब बोलते थे ऐसे ऐसा करेगा तो कैसा होगा। फिर माँ बोलती थी तेरे बहन का शादी कैसा होगा, वो कैसा होगा, कौन देखने वाला है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं, मतलब बाप भी नहीं देखता बराबर से। तो ऐसा करने में फिर मैं उम्र में जाने लगी। What we found that it was done in a very organized manner. There were pimps and agents who used to go in the slum areas and hunt for the vulnerable families. Wherever they found that the family is in need of money or the family was unfit because the family members were alcoholic parents, they used to give them loan at a higher interest. And when they were unable to pay money, they were forced to dedicate the girls once they attained puberty. And after that, they were commercially sexually exploited. फिर उसके बाद में छोटी छोटी लड़की लोग को मतलब अर्ज आया था, कभी जो भी लड़की लोग को पकड़ रहे थे करके ऐसा बोलने लगे। तो उस टाइम पे मेरे को पुणे में लेके गए और पुणे में छोड़े। तो वहाँ पे भी मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगा, वहाँ से मैं फिर भाग के आ गई, वहाँ पे रुकी। फिर आने के बाद फिर वहाँ पे ही रुकी मैं। फिर उसके बाद मेरे को आर्मी और पुलिस लोग ने रेस्क्यू किया। फिर मेरे को एसपीएच में गवर्नमेंट का होम में वहाँ पे रखा था। So we basically work with the victims, once those who are still in prostitution, those who have been rescued, okay, those who have been forcefully sold into commercial sexual exploitation. We work towards their rescue, okay, and then once they are rescued by the police, they are provided care and protection at the government state protected home. It is at that point of time, okay, where we are able to work closely with the victims and seeing mostly the psychological aspect. वहाँ पे मतलब उस टाइम पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, गुस्सा आता था, गाली देती थी, किसी को बोलने को समझ में नहीं आता था और बहुत गुस्सा आता था। सबके साथ में झगड़ा करती थी, सबको बोलती थी। उस टाइम पे क्यों आता गुस्सा, काय को झगड़ा करती, कुछ नहीं मालूम था। एसपीएच में जब रखा था मेरे को गवर्नमेंट के ऊपर, उस टाइम पे कोई भी आता था काउंसलिंग करने के लिए, उनके साथ में झगड़ा करती थी, उनको गाली देती थी, कुछ समझ में नहीं आता। So when we talk about victims of commercial sexual exploitation, one, there is a psychological impact on them. Socially, we have seen how they do feel a sense of stigma, okay, and along with that, we do see the impact on the children too. The whole environment is one. There's a lot of abusive language that is used, okay, a lot of violence that is there, okay, because the victim themselves have faced so much of violence that it is like an impulsive action that they just react to certain things in a way of being harsh, in a way of being abusive, without at some times then realizing
what they are actually doing. तो फिर मैं उसके बाद आज मैं आई, तो यहाँ पे आने के बाद मैं सोचा नहीं था कि वो काम देंगे और मैं काम करूँगी और मैं तो ऐसे ही रहूँगी, बल्कि मैं ऐसा सोचा था। फिर यहाँ पे आने के बाद में लोगों के साथ में मिला, बस्ती में घूमने लगी, तो लोगों को देखा मैंने, लड़की लोग को, छोटी छोटी लड़की लोग को डाल रखा है। मेरे साथ में इतना प्रॉब्लम हुआ है, और मैं तो यहाँ से निकली हूँ और वहाँ पे भी इतने छोटी छोटी लड़की लोग हैं, उनको कोई भी हेल्प करने वाला नहीं, और उनको किस तरह से बाहर निकालने का और कौन हेल्प करे देखते नहीं करते। मैं फिर अड़ोसी गर्ल्स के साथ में, जो लड़की लोग थे उनके साथ में बात करती थी, उनको जाके मिलती थी। So I have found in my course of work working with the Devdasis, it is extremely challenging, but it is not that it doesn't happen. Because what we do is obviously some bit of counseling, some bit of therapeutic intervention, and along with them exposing them to certain things. Okay, like getting religious persons to talk to them and tell them is that ये तो नहीं होता है. तो उसके बाद लॉन्ड्री खोला फिर उनके साथ में, फिर वहाँ पे मैं लॉन्ड्री में सुपरवाइजर करके काम करने को वहाँ पे स्टार्ट किया। तो मैं यहाँ पे आके मैं जैसे काम करती हूँ, अपनी लड़की लोगों को कुछ भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं देख लेती हूँ। What I would like to see is that it is not that victims cannot recover from their trauma and abuse. In our course of work, okay, we have been working for so many years, we have seen is that how when we provide services and each stakeholders they provide services, we do find that they do recover from their trauma and abuse and they restart their life once again. When I say all of us work together, and when I say stakeholders, let it be the police, let it be the persons who have worked with them and they have been provided care and protection, let it be the mental health personals, okay, let it be the counselors, social workers, and all of them together, okay, we work together and we provide professional services, then obviously victims, they do recover from the trauma and abuse and they're able to carry on their life once again. विक्टिम्स ऑफ सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन म्हटल्यार जे प्रॉस्टिट्युशनांत बायलां असतात तांकां इमोशनल प्रॉब्लम खूब असतात. ते इमोशनल प्रॉब्लम जेन्ना ते प्रॉस्टिट्युशनांत असतात तेन्नाय असतात बिकॉज दे आर स्लेव आनी तांकां कोणाय वांगडा म्हणजे जे आर परवर्टेड पीपल तेंच्या वांगडा रावचें पडटा, तेंचे लायफस्टायल चेंज जाल्ली आसता आनी ताका लागून तांकां इमोशनल प्रॉब्लम खूब आसता. त्याच्यातून सुटावे जाल्ले म्हणजे जे रेस्क्यू जातात तेंचेय प्रॉब्लेम संपना. म्हटल्यार आमकां अशें दिसूंक शकता की रेस्क्यू जाले म्हणजे आतां तेंचे लायफ बरें जालें, तशें जायना. तांकां PTSD म्हटल्यार पोस्ट ट्रॉमॅटीक स्ट्रेस डिसऑर्डर ही गोष्ट उरता. म्हटल्यार तांकां परती परती ज्या ट्रॉमातून ते गेल्ले आसता तेचो उगडास तांकां परती परती जाता आनी ताका लागून तांकां अधून मधून किंवा मेंटल हेल्थ सर्विसेस मेळपाची गरज आसता. तांकां डिप्रेशन जाता, तांकां एन्झायटी जाता आनी ताका लागून तेंचे कम्युनिकेशन डिस्टर्ब जाल्लें आसता, तेंचे नवीन इंटरपर्सनल रिलेशनशीप बरी डेवलप करपाक तांकां प्रॉब्लेम जाता आनी त्याच्यासाठी तांकां प्रोफेशनल हेल्पाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी अशी हेल्प आमच्या कडेन आमच्या हॉस्पिटलांत अवेलेबल आसा हें हांव सांगूंक सोदतां.